Across the nations, across the globe, we are the stars of David. Are you a star of David? What is a star of David? A star of David is the one who praises God from the depths of his or her heart in, in, in full honesty, in full faithfulness, in the love of God, that God gave his only begotten Son so that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Do you have everlasting life? Are you sure of your eternity? Where are you going? Because many of us will close their eyes and die, but there are some who will not taste death. Are you one of them who will not taste death? Are you honoring God by being faithful? Being faithful until death? Well, there are two types of death that the scripture tells me about. One death is known to everybody, that you die in the flesh when you take the last breath on this planet Earth. And then you face judgment. And the judge is righteous. Our judge is righteous, the great I am. He does not take sides. He does not take side of the man or a woman. When they sinned, he punished them both. And he punished Satan as well. But we are here in a test now. Who is going to be faithful and who is going to lean on to Satan? And Satan offers the desires of the world, of the flesh. Now, God doesn't want us to live in poverty and not have the best of everything, but he desires us to die. How? While you're still alive. And how can we die when we're still alive? When we say no to anything that is pleasing to the flesh, but it is not pleasing to the Spirit. The Holy Spirit is the one who tells us what to choose and what not to choose. Because there are many who are reading the word, who are teaching the word, but then their hearts are empty of the Holy Spirit. They use the word, but without the Holy Spirit, the word is powerless. And therefore, our churches are powerless. But here we are together as a force. Today, the Koita team is together. And I'm here in London. I never thought that I will be here. But there's one thing for sure, that my father always desired that I should be in London. Well, it was my father's desire, and it was God's will as well. So here I am, after so many years of trying to go to the States, because that was my desire. But it was not the desire of our Heavenly Father. So make sure that you tune in to the desires of the Heavenly Father, because if you are not tuning in, then there is a problem. Because if we stand in our own will and we do not listen to what our God desires, then there's a problem. We face difficulties in life. But make sure that whatever happens in your life, no matter how hard the boat is shaken by Satan, know that there is one who is there in the boat, if you have allowed him to sit in your boat, and his name is Jesus. And he can still the storm. He can still any storm, be it a storm within you or a storm outside you. He can still both. So he will give you peace in whatever situation
you are in. So let's start today a time of praise and worship, of honoring God on the 6th day of the week, a Friday that was chosen by God to honor Him and praise Him with the lead of worshippers from Quetta. So let's start with a prayer from our dear sister, Marshall, who loves God, honors God, and desires to walk on the footprints of Jesus. Father God, help her as she prays. As she prays. कदूस 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 रबल फाजिब लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक परवरदिगार, तू जो था और जो है और जाने वाला है और जो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, उस खालिक के हुजूर आती हूँ। खुदावन खुदा, मैं यहाँ पे मौजूद एक एक शख्स को खुदावन खुदा तेरे पाक लहू की बाढ़ में छुपा देती हूँ और तुझसे मिन्नत और इल्तिजा करती हूँ खुदावन खुदा, आज के दिन के लिए, इस मौके के लिए, जबकि तू हमें ये तौफीक बख्शता है खुदावन खुदा कि हम तेरी हजूरी में हाजिर हों और खुदावन खुदा तेरी हम्द और सताइश करें और तेरे खादमा से खुदावन खुदा तेरे कलाम को सुनने वाले बन सकें। खुदावन खुदा तेरा शुक्र बजा लाती हूँ। अब मैं पूरी प्रेयर मीटिंग को खुदावन खुदा तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। फुप्पो के मुंह से निकला हर एक वर्ड है खुदावन खुदा तेरी मर्जी के मुताबिक हो। हम इसको सुनने वाले, उस पे अमल करने वाले और 100 गुना फल लाने वाले बने हैं खुदावन खुदा, और इसी तरह हमेशा तुझ में कायम दायम रहे। जितने लोग भी खुदावन खुदा तेरी सताइश करते हैं, तू उनके खुदावन खुदा सताइश को अपनी नजर में कबूल ठहराना है खुदावन खुदा, और उनकी रहनुमाई करना। खुदावन खुदा, आज के पूरे दिन को खुदावन खुदा हम सबों के लिए बाइस से बरकत ठहराना और हमें अपनी कसरत से माला माल करना है खुदावन खुदा। ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। Amen, amen. So we have prayed and we have entered the first place of the tabernacle, the court, the outer court. That outer court is a place of prayer. And from the place of prayer, we are now going to enter the place of praise. And we have Shreb leading us in praise as we enter the court with thanksgiving. खुदा उनका शुक्र, खुदा उनकी तारीफ हो। हम आज की अपनी परस्तिश का आगाज करेंगे खुदा उनके हुजूर ज़बूर 32, आम 32, उसका पहला हिस्सा, ओ धन जिसते बख्शे गए। Oh, praise God. Praise God. Hallelujah. जिसके बख्शे गए सपना ढके गए सारे ओढ़न सदा, ओ धन जिसके बख्शे गए सब गुनाह ढके गए सारे ओढ़न सदा। ना रब जिससे पाक बांधा करदा हिसाब, ना रब जिसदे पाक वादा करदा हिसाब, ओ धन है ते दिल उसदा नहीं खराब, ओ धन है ते दिल उसदा नहीं खराब, ओ धन जिससे बख्शे गए सब गुनाह से ढके गए सारे ओगन सदा। मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां, मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां करांदे हुए सारा दिन गल गईयां, करांदे हुए सारा दिन गल गईयां। ओ धन जिससे बख्शे गए सपना से ढके गए सारे ओ धन सदा। दिले भी तेरा भी मेरे खुदा, दिले भी तेरा भी मेरे खुदा, तेरा हथ मेरे उससे भरा रे हाँ, तेरा हथ मेरे उससे भरा रे हाँ।
वो धन जिससे बख्शे गए सब गुनाह से ढक के गए सारे ओढ़न सदा। ये चर्बी मेरी सारी पिघल गई, ये चर्बी मेरी सारी पिघल गई, ये गर्मी भी खुशकी न बदल गई, ये गर्मी भी खुशकी न बदल गई। वो धन जिससे बख्श गए सब गुनाह से ढक गए सारे ओढ़न सदा। तेरे कुल की सागुनादा इकरार, तेरे कुल की सागुनादा इकरार। हाँ मन लिया मैं ते हाँ डाडा बदकार, हाँ मन लिया मैं ते हाँ डाडा बदकार। वो धन जिससे बख्शे गए सब गुनाह से ढक के गए सारे ओढ़न सदा। खुदावन का शुक्र हालेलुया, है, खुदावन की तारीफ है। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत। और ये साम 32 जो कि दाऊद ने लिखा, और उसने अपने गुनाह का खुदावन के सामने रखा, और उसने मुआफी मांगी, और उसके गुनाह पे पर्दा डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने गिड़गिड़ा के दुआएं मांगी कि मुझे माफ कर, मैं इकरार करता हूं अपने गुनाह का। जब हम अपने गुनाह का इकरार नहीं करते तो खुदा इसको पसंद नहीं करता। और यही आदम और हवा ने किया था कि उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया। हवा ने ब्लेम शैतान पे डाला, और आदम ने ब्लेम हवा और खुदा पे डाला। तो हम जब ब्लेम गेम खेलते हैं तो खुदावन को वो चीज पसंद नहीं आती। तो दाऊद क्यों मकबूल है खुदावन की नजर में? उसको खुदावन कहता है कि ही इज द एप्पल ऑफ माय आई, यानी कि आंख की पुतली उसको कहा गया है। हालांकि वो बदकार था, वो जराकार था, वो उसने कत्ल किया करवाया था, लेकिन उसके गुनाह माफ हुए क्योंकि उसने अपने गुनाह का इकरार किया। जब हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते और हम अपने गुनाह दूसरे पे डाल देते हैं कि ये उसकी वजह से हुआ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो फिर खुदावन अपने जलाल में खड़ा होता है और फिर वो तंबी करता है, तंबी करता है। और अगर फिर भी हम अपने गुनाह का इकरार नहीं करते, अपने प्राइड में खड़े रहते हैं, तो फिर उसका कहर हम पे बरसता है। तो इससे पहले कि खुदा का कहर कि आप पे बरसे, आप अपने गुनाह का इकरार करें, नई पैदाइश का मजा चखें, और उसके बाद गिर ना जाएं, क्योंकि नई पैदाइश के बाद भी बहुत से लोग गिर जाते हैं और फिर वो दुख उठाते हैं। लेकिन यीशु हमारा बोझ उठाने के लिए रेडी है। उसको हम अपना सारा बोझ दे दें तो हम इत्मीनान पाएंगे, परस्तिश में आगे बढ़ेंगे और जय जयकार करेंगे। खुदावन की तारीफ हो, खुदावन के नाम की तमजीद हो। आगे हम गाएंगे जबूर 32 का ही दूसरा हिस्सा, दूसरा हिस्सा इसका, सिखावांगा तेनू विखावांगा राह। He is the way, the truth, and the life. And no man comes unto the Father but by him. But by him. Amen. Praise the Lord. Amen. विखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। ना हो घोड़िया पचरा वांग तू, ना हो घोड़िया पचरा वांग तू, कि कुछ भी नहीं है समझ नानू, कि कुछ भी नहीं है समझ नानू। दिखावांगा तैनू दिखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा।
लगामाचे भांगा है ओ नादा साथ, लगामाचे भांगा है ओ नादा साथ, ना ओ रहंदे का तू विच ओ ना दे बात, ना ओ रहंदे का तू विच ओ ना दे बात, सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा, मुसीबत शरीर उते रहंदी सदा, मुसीबत शरीर उते रहंदी सदा, यहोवा जिना दा है पर आसरा, यहोवा जिना दा है पर आसरा, सिखावांगा तेनू सिखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा, ओ दिल दी खुशी विच रहंदे ने हां, ओ दिल दी खुशी विच रहंदे ने हां, ते रब घेदाओ नानू रहमत देना, ते रब घेदाओ नानू रहमत देना, सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा, उसी साध को सब सीधे दिलो, उसी साध को सब सीधे दिलो, यहोवा दे विच मिलके खुशियां करो, यहोवा दे विच मिलके खुशियां करो, सिखावांगा तेनू सिखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। हालेलुया, खुदावन की हालेलुया। स्तुति। प्रेज द खुदावन की लॉर्ड। सताइश हो, खुदावन की सताइश हो। और ये जबूर डेविड ने, बादशाह ने अपनी दानिस्त में खुदावन के हजूर पेश किया कि यहोवा उसको राह दिखा रहा है, क्योंकि उस वक्त यीशु मुजस्सम नहीं हुआ था, वो जिस्म में नहीं आया था। लेकिन जब जिस्म में यीशु आया तो वो हमें राह दिखाता है, जो कि मुश्किल है, वो तंग है। और कलाम कहता है कि तंग दरवाजे से दाखिल हो, कुशादा रास्ते से तो बहुत दाखिल हो जाएंगे, लेकिन तंग रास्ते से बहुत कम दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि यीशु की सिखाई हुई जो शरीयत है वो बहुत मुश्किल है। शरीयत फॉलो करना आसान है, क्योंकि शरीयत बताता है ये करो ये ना करो, दिल में जो कुछ भी है किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन खुदावन यस्सु ये बताता है कि मैं तुम्हारे दिल चेक कर सकता हूं, और अगर तुम्हारे दिल पाक नहीं तो पाकीज़ा दिल ही खुदा को देखते हैं, ना पाकीज़ा दिल खुदा को नहीं देख सकते। क्योंकि हम मत्ती की अंजील उसके 5वें बाब में पढ़ते हैं, उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि पाक दिल खुदा को देखेंगे, पाक दिल। तो अगर आपका दिल पाक है तो ही आप खुदा को देखेंगे, और अगर आपका दिल पाक नहीं है तो अभी भी टाइम है, क्योंकि अभी आपके पास सांसें हैं। कितनी देर ये कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं भी नहीं कह सकती कि कल मैं इस दुनिया में होंगी या नहीं। हम प्लानिंग 10-10, 20-20, 50 साल की करते हैं, लेकिन हमें अगले पल की खबर नहीं होती। प्लानिंग जरूर करें, क्योंकि एक चींटी भी प्लान करती है अपने अ, अ, उस वक्त के लिए कि जब सर्दी होगी और उसे खाना नहीं मिलेगा। प्लानिंग जरूर करें, लेकिन अपने सारे प्लान्स खुदा के सामने रखें और कहें जैसे तेरी मर्जी हो, जैसे कि मरियम ने कहा जैसे तेरी मर्जी हो, बी इट अनटू मी अकॉर्डिंग टू दाई विल। दाई विल, उसकी मर्जी पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम उसकी मर्जी पूरी नहीं करते तो फिर हम अपनी मर्जियों पे डाल दिए जाते हैं, और हमारी मर्जी हमें गिरा देती है। हम ये देख चुके हैं, और हम इसका मजा कम नहीं चखें तो अच्छी बात है, क्योंकि जो गिरता है वो फिर खड़ा होना उसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन कलाम कहता है कि सादिक 7 बार भी गिरे तो खुदावंद उसको खड़ा कर देता है। तो खुदावंद यीशु पे भरोसा रखे। दाऊद नबी ने कहा कि वो गुनाह
ढांप देता है। शरीयत से गुनाह ढप जाते थे, गायब नहीं होते थे। यीशु से गुनाह धुल जाते हैं। उसके खून से हम पाक हो जाते हैं। हम ढकते नहीं, हम पाक हो जाते हैं। और कौन पाक होता है? हमारी रूह, क्योंकि खुदावंद कहता है रूह और सच्चाई से जो परस्तिश करता है उसकी मैं सुनता हूं। तो जिस्म तो कभी पाक हो ही नहीं सकता। जिस्म नापाक है क्योंकि वो नापाकीजगी की हालत में इस दुनिया में आता है, लेकिन खुदावंद यीशु के फजल से वो पाकीज़ा ठहराया जाता है और फिर रूह और सच्चाई से हम उसकी परस्तिश कर सकते हैं। तो परस्तिश करते हैं और रूह में आगे बढ़ते हैं। खुदावन का शुक्र और खुदावन की तारीफ हो। खुदावन की प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं और जबूर गाएंगे। जबूर 84। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है। ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। मेरी जान चाहदी तेरी बारगाह। मेरी जान चाहदी तेरी बारगाह। मेरा मन मेरा तन भी करदा सना है। मेरा मन मेरा तन भी करदा सना है। खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है। ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। खुदा उनका शुक्र हो। अटेरन ते चिड़िया ने आल ना पाया। अटेरन ते चिड़िया ने आल ना पाया। बनाइयो ना बोटां दे बैल दी जा है। बनाइयो ना बोटां दे बैल दी जा है। खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है। आए ते तरह मेरे बादशाह। आए ते तरह मेरे बादशाह। तेरा मजबा मेरे लिए बना है। तेरा मजबा मेरे लिए बना है। खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है। मुबारक तेरे घर दे सब रहन वाले। मुबारक तेरे घर दे सब रहन वाले। सना तेरी ओना दे मुंह विच सदा है। सना तेरी ओना दे मुंह विच सदा है। खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है। मुबारक है ओ जिसदा है जोर तेको। मुबारक है ओ जिसदा है जोर तेको। उना दे दिलां विच ते तेरा हीरा है। उना दे दिलां विच ते तेरा हीरा है। खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है। ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। Oh, hallelujah. खुदा Lord, उनका thank शुक्र। you, thank you, thank you for the glorious presence. तू मौजूद है, तू इस वक्त कोयटा में, तू यहाँ लंदन में, तू हर जगह मौजूद है। लेकिन फिर भी कहा है, लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से मौजूद होंगे, मैं वहां मौजूद होऊंगा। यानी कि हमें उसकी हजूरी महसूस होगी, क्योंकि खुदा तो हर जगह मौजूद है।
कौन सी ऐसी जगह दुनिया में है जहां खुदा मौजूद नहीं? कलाम कहता है कि हम अगर समुद्रों की गहराई में चले जाएं, वहां भी खुदा है, उसकी नजर हमें वहां भी देख पाएगी। अगर हम पहाड़ की बुलंदियों पर जाए, तो वहां पे भी उसकी नजर हमें देखती है। वो हमें हर जगह ढूंढ सकता है, देख सकता है। हम किसी गलत जगह पे हैं, तो भी खुदा हमें देख सकता है। लेकिन वो हमारा अच्छा चरवाहा है, इसीलिए वो हम पे हमें टाइम देता है, ताकि कोई भी भेड़ वापस आ जाए। और ये जो मैं आपके निशान बना रही थी, इसका मतलब है जीसस, यानी कि यीशु के हथेलियों में जो कील ठोके गए, कि उसको सलीब दी गई, ये जीसस, साइन लैंग्वेज में जीसस कहा जाता है, जो लोग बोल नहीं सकते। और मैं कुछ ऐसी बच्चों के साथ इस वक्त कांटेक्ट में हूँ यहाँ यूके में, और आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान में भी कांटेक्ट कोशिश करना चाह रही हूँ कि हो, जो कि बोल नहीं सकते। और बोलता कौन नहीं है? जो सुनता नहीं है। जो सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब बचपन से अगर आपको आपके कान बंद होंगे तो आप कैसे सीखेंगे? लेकिन इंसान एक इंटेलिजेंस दी है, खुदावंद ने उसको एक विजडम दिया है, कि हमने एक ऐसा तरीका इजाद दिया जिसे साइन लैंग्वेज कहा जाता है। और साइन लैंग्वेज के जरिए लोग आपस में बात कर सकते हैं, अपने दिल के बयान कर सकते हैं, अपना दूसरे की बात समझ सकते हैं। लेकिन हमें साइन लैंग्वेज समझ नहीं आती, क्योंकि हम कानों से सुन सकते हैं। लेकिन क्या आपके पास वो रूहानी कान है जिससे आप खुदावन की आवाज सुन सकते हैं? क्योंकि कलाम में लिखा है कि बहुत से हैं जो सुनते हुए ना सुनेंगे और देखते हुए ना देखेंगे। वो कौन से लोग हैं? वो ऐसे लोग हैं जिनके पास बिनाई है, जिनके पास सुनने के लिए कान है, लेकिन समझने के लिए दिल नहीं। और जिसके पास समझने के लिए दिल नहीं, वो अंधा और बहरा होता है, क्योंकि उसको समझ नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और इस मंथ हम अंडरस्टैंडिंग के बारे में सीख रहे हैं, मैं अंडरस्टैंडिंग के बारे में सीख रही हूँ, कि हम खुदावन के भेदों को समझें, उसकी जात को समझें, और उसके शान और शौकत जो परस्तिश है उसके हजूर नजर गुजराने, तो वो हमारी आवाजें सुनेगा, वो हमारी दुआएं सुनेगा, और उसका जवाब देगा, क्योंकि वो ऐसा बाप है जो देने के लिए तैयार है। वो सब अच्छी चीजें देने के लिए तैयार है, उसने तो कुछ बुरा दिया ही नहीं। उसने बाग अदन में सब कुछ अच्छा रखा, लेकिन हमने बुरी चीज चुन ली। और हवा ने पहली पहली हवा वो पहली शख्स थी जिसने बुरी चीज चुनी। तो अब मैं हवा हूं, जो कि बहुत सी हवाओं को अब सिखाना चाहती हूँ कि अच्छी चीज चुने, अच्छी चीज चुने, ताकि हम कसूरवार ना ठहरें। और हमारा यीशु, जो कि दूसरा, जिसको सेकंड एडम कहा गया है, उसके वसीले से हमें जिंदगी मिलती है, और हम उस मौत पे फतह पा सकते हैं जिसने मौत पे फतहमंदी हासिल की, और वो है यीशु। तो रूह में आगे बढ़ते हैं और फतहमंदी के साथ नारे लगाते हैं, क्योंकि यीशु फतहमंद है और उसके वसीले से हम फतहमंद है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावन का शुक्र, खुदावन की तारीफ हो। हमें गीत गाएंगे। ये गीत बहुत मुझे मुझे पसंद भी है। और अभी जिस तरह हम तीन हैं, और खुदा ने कहा कि जहाँ या दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। बेशक, गीत है खुदावन अपने लोगों में आया है। बेशक, बेशक। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, you're here, but Satan cannot do anything, even though this technology is the one thing that he uses. और अब जब हम दो या तीन के नाम से परस्तिश में इकट्ठे होके सुनने के लिए तैयार थे, तो उसने राब्ता मुनक़ता किया। लेकिन हमारा राब्ता तो रूहानी है, हमारा राब्ता रूहानी है, और रूहानी राब्ते टूटे नहीं जा सकते। हम दुआएं करते हैं, और हमारे हर
काम होते हैं जो खुदावन की मर्जी के शान और शौकत हैं। और खुदावन की मर्जी है कि हम आज मिल के तीन उसके सामने शुक्रगुजारी करें और उसकी सताइश करें। आमीन आमीन। सॉरी, कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम था तो कॉल ड्रॉप होगी खुद ही से। वो मैं शैतान दोबारा कर कोशिश लेकिन कर रहा है, कोशिश करता है कि जहां पाकीज़गी से परस्तिश हो रही है उसको मुनकता करे। और वो रूहानी रूहानी जो है ना, जो कि हमारे दिलों से जुड़े हुए हैं, हम रूह के जरिए, वो मुनकता नहीं कर सकता। जो हम दुआ करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी को भी ताबे होना लाजिम है। आमीन। आमीन आमीन आमीन। हम गीत गाएंगे, खुदावंद अपने लोगों में आया है। खुदाबंद अपने लोगों में आया है। खुदाबंद अपने लोगों में आया है। पाक रूह का पहरा हर्षू छाया है। वो आया है, यीशु आया है। पाक रूह का पहरा हर्षू छाया है। वो आया है, यीशु आया है। खुदाबंद अपने लोगों में आया है। खुदाबंद अपने लोगों में आया है। दुश्मन सारे भागेंगे, हालेलुया। बंधन सारे टूटेंगे, हालेलुया। दुश्मन सारे भागेंगे, बंधन सारे टूटेंगे, क्योंकि उसने तख्त अपना यहाँ पर लगाया है। यीशु आया है, क्योंकि उसने तख्त अपना यहाँ पर लगाया है। यीशु आया है। खुदाबंद अपने लोगों में आया है। खुदाबंद अपने लोगों में आया है। सूली पे वो मुआ है, हालेलुया। यही प्यार का रास्ता है, हालेलुया। सूली पे वो मुआ है, यही प्यार का रास्ता है। जान भी दी कलवरी पे, खून भी बहाया है। यीशु आया है। जान भी दी कलवरी पे, खून भी बहाया है। यीशु आया है। खुदाबंद अपने लोगों में आया है। खुदाबंद अपने लोगों में आया है। अपनी जीवन देने को, हालेलुया। अपनी खुशी देने को, हालेलुया। अपनी जीवन देने को, अपनी खुशी देने को, उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है। यीशु यीशु आया आया है। है, उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है। यीशु यीशु आया आया है। है। खुदाबंद खुदावन के लोगों में आया है। खुदाबंद के लोगों में आया है। पाखरू का पहरा छाया है। वो आया है, यीशु आया है। पाखरू का पहरा छाया है। वो आया है, यीशु आया है। खुदाबंद अपने लोगों में आया है। खुदाबंद अपने लोगों में आया है। खुदावन का शुक्र और खुदावन की तारीफ हो। प्रेज द लॉर्ड। Praise हालेलुया। Hallelujah, Hallelujah। बेशक, बेशक खुदावंद अपने लोगों में आया है। और वो कैसे आया है? वो पाक रूह, जो कि जब यीशु जा रहा था, जब माउंट ऑफ ऑलिव से वो उसने
खैरबाद किया इस जहान को, और वो 40 दिन के बाद ऊपर उठा लिया गया। 40 दिन कब से? संडे के दिन से। उस दिन जब वो जी उठा मुर्दों में से, उसके 40 दिन के बाद तक वो नजर आता रहा लोगों को, और वो फिर जी उठा। जी उठने के 40 दिन के बाद उठा लिया गया आसमान पे, जिसे कि हम असेंशन डे कहते हैं। इस वक्त, इस साल हम असेंशन डे रोम में मनाएंगे, और खुदावंद का पाक रूह काम करने के लिए आज भी रेडी है। क्योंकि यीशु जब जा रहा था तो उसने कहा कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे लिए एक मददगार छोड़े जा रहा हूं, जो कि दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ होगा। और वो मददगार कौन है? वो है पाक रूह। पाक रूह रूह है, इंसान नहीं है। वो मरता नहीं है। वो पाक रूह वो रूह है जो जिसकी कुदरत से यीशु मरियम की कोख में पड़ा, पाकीज़ा हालत में, जब वो किसी आदमी को नहीं जानती थी। और वो ही रूह आज है, आज मौजूद है हमारे लिए, हमारे दिलों में सकूनत करने के लिए, ताकि हमें वो मदद करे हर वक्त, हर लम्हे। जो हम डिसीजंस लेते हैं अपने लाइफ में, तो हमारा वो हामी हो, मददगार हो, ताकि हम वो डिसीजन लें जो खुदावन यहोवा पाक की मर्जी के मुताबिक हैं। क्योंकि जब हम नई पैदाइश का मजा चखते हैं और पाक रूह रेडी होता है कि हमारे लिए काम करे, तो हम क्या करते हैं? हम उसकी आवाज को दबा देते हैं। क्योंकि हमारा जिस्म हम पे हावी हो जाता है, हमारी ख्वाहिशात, जिस्मानी ख्वाहिशात हावी हो जाती है, और हम रूह की आवाज को दबा देते हैं। क्योंकि रूह की आवाज जो है वो शेर की आवाज की तरह धाड़ती नहीं, वो एक कबूतर की मानिंद है, और वो चुपचाप बैठी रहती है और वो इंतजार करती है कि कब मुझे मौका दिया जाए बोलने का, और कब मैं इसकी जिंदगी में काम करूं। और जब हमारी जिंदगी में हम पाक रूह को इजाजत देते हैं काम करने की, तो वो काम करता है। क्योंकि पाक रूह जोर और जबरदस्ती से कुछ भी नहीं करता। जोर और जबरदस्ती से सिर्फ शैतान करता है। वो हमें जबरदस्ती कैसे करता है? हमें डिसीव करके, हमें एक हाथ दिखा के दूसरे हाथ से वो मार के चला जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता। तो हम जब पाक रूह के वसीले से पाकीज़ा होते हैं, तो हम शैतान के हर हमले को पहले से भांप लेते हैं, और फिर हमें वो कुछ भी नहीं कर पाता। जैसे कि अय्यूब, वो पाक रूह की मदद से चलता था, और उसने वफादारी दिखाई। और हम वफादार अगर नहीं होंगे, तो फिर हम खुदावंद को प्लीज नहीं कर सकते, हम उसको खुश नहीं कर सकते। Hallelujah. Thank you so much. What a wonderful time of praise and worship. I think that was the last song. जी 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 जी। जी। सो खुदावंद अपने लोगों में आया है, वो आया, वो चला गया, जिस्म उसका आया। यानी कि खुदावंद की जो अल्फाज थे, जो कलमबंद हैं इस किताब में, वो अल्फाज जिस्म की सूरत में आए, हमें सिखाना चाहा। क्योंकि हम पढ़ के सीख नहीं पाए, तो वो एग्जाम्पल के तौर पे आया, और उसने बताया कि मुआफ करना बेहतर है, दूसरे को आगे रखना बेहतर है, सर्व करना बेहतर है। और उसने सब कुछ ये करके दिखाया और कहा, अब मेरी मानंद बनो। उसने अब जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने अपने शागिर्दों के पैर धोए। वो जो कि मुर्दों को जला सकता था, वो जो कि अंधों को आंख दे सकता था, वो जो बहरों को समाध दे सकता था सुनने की, उसने पैर धोए। उसने अपने आप को छोटा किया। क्या हम अपने आप को छोटा करते हैं? हम तो दौड़ में लगे हुए हैं कि हम कैसे ऊंचे हो जाएं, हम किसी और को नीचे दबा के कैसे ऊपर हो जाएं, ताकि हमारा ही
डंका हो, हमारी जय जयकार हो, हमारी ही हर जगह बातें हो, हमारा ही चर्चा हो कि ये कितना अच्छा, ये कितनी अच्छी दुआ करती है, ये कितना अच्छा, कितनी अच्छी परस्तिश करता है, ये कितना अच्छा कलाम पेश करता है, इसमें यस्सु किधर गया, इसमें पाकरू किधर गया। क्योंकि पाकरू जब जिसमें आता है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु को आगे रखता है, उसकी तारीफ करता है और अपने आप को पीछे रखता है। जो शख्स यीशु को आगे नहीं करता, जो शख्स छोटा नहीं होता, वो पाकरू के अपने अंदर लेके नहीं चलता। और जो पाकरू अपने अंदर लेके नहीं चलता, वो खाली बर्तन है। और जो खाली बर्तन होता है, वो शैतान के लिए एक टारगेट होता है। तो अपने बर्तन को खाली ना छोड़ें, अपने बर्तन को खाली ना छोड़ें। जब कलाम पढ़ के आपका दिल पाकीज़ा हो जाए, तो बुलाएं पाक रूह को कि वो वहां सुकूनत करे और राज करे, राज करे। क्योंकि जब पाक रूह आपके दिल में राज करेगा, तो फिर आप में कुदरत आएगी, कुदरत आएगी वो करने के लिए जो यीशु के डिसाइपल्स करते थे। क्योंकि हमें डिसाइपल्स होने के लिए बुलाया गया। कलाम में लिखा है गो एंड प्रीच द गॉस्पल। किसके लिए? सिर्फ एक पास्टर के लिए, सिर्फ एवेंजलिस्ट के लिए? किसके लिए? सबको कहा गया। प्रीच हम कैसे कर सकते हैं? हम पुलपिट पे सिर्फ खड़े होकर प्रीच नहीं कर सकते। हम अपनी जिंदगी में, अपने सर्कल्स में प्रीच करते हैं, अपने बिहेवियर से प्रीच करते हैं, अपने अल्फाजों से प्रीच करते हैं, अपनी सोच दूसरों के साथ जब हम शेयर करते हैं तो हम प्रीच कर रहे होते हैं। जब हम लोगों की बुराइयां कर रहे होते हैं, तो फिर खुदावन सुन रहा होता है कि क्या ये कलाम के मुआफिक कर रहे हैं या ये सफेदी फिरी हुई कब्रें हैं। तो खुदावन सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, और वो हमसे सब कुछ समझाने के लिए तैयार है। क्या हम समझने के लिए तैयार हैं? जब तक हम अपने दरवाजे बंद रखेंगे, पाक रूह को, खुदावंद यीशु को नहीं आने देंगे अंदर, तब तक हम अपने दरवाजे जो है अंदर से लॉक करके बैठे हैं। क्योंकि जब यीशु आता है, तो वो हमें सर्व करना सिखाता है, वो छोटा होना सिखाता है, और वो दूसरे को आगे करना सिखाता है। क्योंकि उसने यही किया कि जब उसने अपने डिसाइपल्स को टीच किया 3 साल, और आज भी 3 साल का एक टेन्योर है, जो कि रिबानिकल टीचिंग में कहते हैं एक शागिर्द बनने के लिए जो है वो 3 साल मखसूस किए गए हैं। मैं जिस्मानी उसमें बात कर रही हूँ। और एक सेमिनरी में भी 3 साल मखसूस किए गए हैं सीखने के लिए, कलाम सीखने के लिए, कलाम के भेद जानने के लिए 3 साल नहीं लगते। उसमें तो बहुत सा टाइम लगता है, क्योंकि खुदावन तो हमारी समझ से बालातर है। और मैं 1991 में जब मैं मेरी नई पैदाइश हुई, तो अब 2025 आ गया है। 34 years। और 31 years के बाद जाके मुझे समझ आना शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा कि क्या खुदावन चाहता है मेरी जिंदगी से। तो खुदावन को समझना आसान नहीं, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत बाला तर है। लेकिन जब हम जान लें, पहचान लें, जब पाकरू को हम जगह दे दें अपने दिल में, तो काम फिर ऑटोमेटिक होते हैं। और कैसे ऑटोमेटिक होते हैं? कि जब डिसाइपल्स जाते थे, तो जब उन्होंने सीख लिया था कि कि भेद क्या है, और यीशु से उनको पावर मिल चुकी थी, और वो पावर क्या थी? पाकरू था। तो यीशु उनके साथ हर जगह नहीं जाता था, वो दुआएं करके करने जाते थे, वो लोगों के घर जाते थे, और क्या करते थे? मौजज़ात करते थे। खुदावंद उनके साथ, यीशु उनके साथ नहीं होता था। और पौल, जो कि डायरेक्ट डिसाइपल भी नहीं था यीशु का, उसके तो साय से ही लोग शिफा पा जाते थे। क्या ही मिस्टीरियस बातें हैं जो कलाम में लिखी हैं, कि ऐसा कैसे मुमकिन था। लोग आजकल चाहते हैं कि बस हमें एक ऐसी कोई पावर मिल जाए कि लोग हमसे इंप्रेस हो जाए।
अगर आपके पास कुदरत है शिफा की, मौजज़ात की, तो उसको अपनी ग्लोरी के लिए ना इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप अपनी ग्लोरी के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपनी सताइश के लिए, अपनी जय जयकार के लिए, सताइश के लिए यूज करेंगे, तो काम तो होना है यस्सु के नाम पे। हम में, मुझ में, आप में कोई ताकत नहीं, लेकिन फिर वो शख्स ऐसा शख्स होगा जिसके लिए कलाम में लिखा है कि वो कहेगा कि खुदावन, मैंने तेरे नाम से क्या क्या नहीं किया, मैंने तो बड़े बड़े काम किए, मैंने तो कितने लोगों को शिफा दी, मैंने तो बदरूहें निकाली, और खुदावंद उनको कहेगा, जाओ, मैं तुमको नहीं जानता। क्या ही खतरनाक बात है कि जब खुदावंद किसी को कह दे कि मैं तुमको नहीं जानता। तो हम अगर खुदावंद को जाने, उसको समझें, तो फिर वो हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि माय शीप हेयर माय वॉइस, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, सुनती हैं। और अगर कोई खो जाए तो चरवाहा रेडी है उसको ढूंढने के लिए, और वो एक गल्ले में चलती हैं। भेड़ कहीं अकेली नहीं भागती। और ये गल्ला जो स्टार्स ऑफ डेविड का खुदा ने मेरे दिल में डाला, ये बहुत बड़ा गल्ला है। इसकी भेड़ें बहुत डिफरेंट 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 कंट्रीज में हैं, और अब हम डिफरेंट कंट्रीज में थोड़ी थोड़ी भेड़ें इकट्ठी होती हैं, और हम खुदावंद का जलाल देखते हैं, और हम आगे आने वाले दिनों में उसका और जलाल देखेंगे। जैसे कि रूह में खुदावंद मुझे और बढ़ाएगा, मैं उसको और समझूंगी, आप उसको और समझेंगे, क्योंकि हर एक का रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहता है, वो किसी के थ्रू नहीं करना चाहता। वो मेरे हस्बैंड के थ्रू मुझसे कांटेक्ट नहीं करेगा, वो मेरे फादर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहता है। लेकिन जान ले कि अथॉरिटी के ताबे होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे कि एक वाइफ अपने हस्बैंड की अथॉरिटी के अंडर है। कौन सी अथॉरिटी? एक जिस्मानी अथॉरिटी, और एक होती है रूहानी अथॉरिटी। रूह जो है वो हुक्मरान है, वो किसी में भी काम करे, वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वो हुक्मरान होती है, लेकिन वो हुक्मरानी प्यार से करती है। रूह हमेशा हुक्मरानी प्यार से करती है, वो डंडे के जोर से नहीं करती, वो डंडे के जोर से कभी नहीं करती। तो हम जब खुदावंद को समझते हैं, तो फिर हम रूह में आगे बढ़ सकते हैं। और आज की वर्ष जो मुझे कलाम से मिली, वो बहुत ही खूबसूरत है, और वो ज़बूरों की किताब से हमने ज़बूर सुने, हम ज़बूर गाते हैं, उसमें बहुत कुदरत है, ताकत है। डेविड की नस्ल से ही यस्सु जो है उसका नसबनामा डेविड की नस्ल से जाके जोड़ा जाता है, लेकिन बीज वो खुदा का था, पाकरू था वो, पाकरू बीज था वो, जो कि बाप की तरफ से नहीं आया, लेकिन वो माँ मरियम, मरियम के पेट में डाला गया, क्योंकि मरियम राजी थी खुदावन की मर्जी पूरी करने के लिए। आज भी खुदा ढूंढता है कि कौन मेरी मर्जी करना चाहता है, कौन अपने आप को खाली करके मेरी मर्जी करना चाहता है। तो फिर खुदावंद उसकी जिंदगी में काम करता है। और ये है ज़बूर 119, उसकी 99 और 100वीं आयत है। इट इज रिटन, आई हैव मोर अंडरस्टैंडिंग देन ऑल माई टीचर्स। और ये कौन कह रहा है? ये दाऊद कह रहा है। फॉर दाई टेस्टिमनीज आर माई मेडिटेशन, आई अंडरस्टैंड मोर देन द एंशियंट्स बिकॉज आई कीप दाई प्रिसेप्ट्स। अब जो टीचर्स डेविड से पहले गुजरे, उनके लिए वो कह रहा है कि मैं सबसे ज्यादा समझता हूं। और मैं क्यों समझता हूं? क्योंकि जो मैं खुदा के काम देखता हूं, और उसके काम क्या थे? उसने तारीफ की सितारों की, चांद की, हर एक चीज की जो खुदा के हाथों ने बनाए, उसकी सोच ने बनाई, उसकी पैदा की, उसकी तारीफ की। और उसने जाना कि खुदावंद कुल कायनात का मालिक है, और मुझे पाकीज़ा होना लाजिम है, नहीं तो मैं
उसको नहीं देख पाऊंगा। इसीलिए वो कहता है कि मैं पूरे टाइम तेरी ही हैकल में बैठ के गुजारना चाहता हूँ। वो ऐसा मदहोश हो जाता था उसकी परस्तिश में, अपने यहोवा पाक की परस्तिश में, हमारे खुदा की परस्तिश में, कि वो जो अहद का संदूक है उसके आगे वो नाचता हुआ जाता था, नाचता हुआ जाता था। और ये मेरे सामने, आपके सामने, ये अहद का संदूक है जिसको 4 लोग कैरी करते थे, और एक आगे आपको नजर आ रहा है, 5वां, जो कि पर्वत बजाता हुआ आगे जा रहा है। और डेविड अहद के संदूक के आगे नाचता हुआ जाता था, क्योंकि वो बहुत खुश था कि खुदावंद ने उसका गुनाह माफ कर दिया। और अब मैं गुनाह में नहीं पड़ूं, तो मुझे खुदा थाम के रखे। क्या आप ऐसे झूमते हैं, नाचते हैं कि खुदावंद ने मुझे माफ कर दिया और अब मेरा गुनाह ढपा नहीं है? डेविड का तो गुनाह ढपा था, हमारा तो धुल चुका है। हालेलुया। तो हम फिर ये जान ले कि जब हमारे गुनाह धुल चुके तो हम फिर गुनाह ना करें। क्योंकि क्या रोज हम फिर मसीह को मसलूब करें? कि हम रोज गुनाह करें, रोज माफी मांगे अपने आप को धोने के लिए, और रोज उसे मसलूब करें? तो फिर उसने कहा कि क्योंकि मुझे क्यों अंडरस्टैंडिंग ज्यादा मिली, आई अंडरस्टैंड मोर देन द एंशियंट्स, जो गुजरे हुए हैं उनसे ज्यादा, क्योंकि मैं उसके हुक्मों पे चलता हूं। क्या आप उसके हुक्मों पर चलते हैं? एक 10 काम है जो हम बच्चों को सिखाते हैं, और 2 हुक्म जो कि हम नए नामे में पढ़ते हैं। 11वां हुक्म, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, and with all thy soul. And the 12th, thou shalt love thy neighbor as thyself. Are we doing this? क्या हम अपने पड़ोसियों के लिए दुआ करते हैं? क्या हम पड़ोसी ममालिक के लिए दुआ करते हैं? पड़ोसी कौन है? अपनी मानिंद मोहब्बत रख। 12वां हुक्म सोचें, और कलाम कहता है कि इन 2 हुक्मों पे तमाम तौरेत और अंबिया खड़े हैं, टिके हैं। My goodness. Jesus said, I have not come to abolish the law, but fulfill the law. और उसने फुलफिल कैसे किया? अपनी जान देके। कौन है जो अपनी जान देगा किसी और के लिए? वो हमारे यीशु ने करके दिखाया, और हम उसकी रास्तबाजी हासिल कर लेते हैं जब हम उस पर ईमान लाते हैं और हमारे दिल उसके लहू से धुल के पाक होते हैं। तो आज की इस खूबसूरत परस्तिश में मेरा दिल शुक्रगुजारी से लबरेज है, क्योंकि ये मंथ जो फरवरी का मंथ अंडरस्टैंडिंग का मंथ था, जिसको मैं अब क्योंकि मैं इंग्लिश बाइबल पढ़ती हूं, तो फरवरी वाज द मंथ ऑफ फैटनेस। फैटनेस ऑफ फॉर व्हाट? फैटनेस in your mind, the mind of Christ, the mind that understands what God desires from us. और कल मार्च है, कल मार्च का महीना है, और कल हमारी विमेन एंड चिल्ड्रन कॉन्फ्रेंस है लंदन में। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसको जरूर दुआ में याद रखें, क्योंकि कल से मार्च का मंथ शुरू होता है। आज फरवरी का मंथ खत्म हो रहा है, जिसको मैंने मंथ ऑफ फैटनेस कहा और मंथ ऑफ फ्रैंकिनसेंस कहा। फ्रैंकिनसेंस से दूसरा तोहफा था जो यीशु को मिला, जो कि बादशाह लेके आए। 3 तोहफे थे, सोना, मुर, लुबान। और कल से जो मार्च का महीना है, उसे मैंने जो रूह में मुझे हिदायत हुई, मार्च इज द मंथ ऑफ मर, लबान, जो कि सैक्रिफाइस की निशानी है, जो कि ये बताता था कि यीशु ने जान देनी है, वो दुख उठाएगा। हम भी इस दुनिया में दुख उठाते हैं, कभी जिस्मानी दुख उठाते हैं, कभी हम इमोशनल दुख उठाते हैं, कभी हम फाइनेंशियल दुख उठाते हैं, कभी हम रिलेशनशिप से दुख उठाते हैं। लेकिन जान लें कि हमारा यीशु हर दुख दूर करने के लिए रेडी है, क्योंकि उसने हर दुख का
से सहा है, उसने हर दुख सहा है और उसको एहसास है दुखों का, इसलिए वो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। क्या आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर आप खुदावंद यीशु को अजीज रखते हैं, अपनी जान से, अपने अजीजों की अपने अजीजों से भी ज्यादा उसको अजीज रखते हैं, तो फिर आपका प्यार नजर आता है, और फिर जब आप दुआएं करते हैं तो वो सुनता है, वो सुनता है। तो हम थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मरीना, आई नो दैट यू आर वर्किंग और आप कई दफा ड्यूटी से आते हैं, वी जस्ट क्लोजिंग। तो हमने बहुत ही खूबसूरत परस्तिश सुनी कोयटा से, शुएब से, और दुआ का आगाज हुआ था मशाल से, और वो भी कोयटा से है, और हम दुआ का इख्तिताम, इस इबादत का इख्तिताम आपसे करेंगे, कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दुआ करें कि खुदावंद कल जो मार्च शुरू हो रहा है, वो खुदावंद जो है हमारे लिए बरकत का बाइस हो, और बरकत जो है हमें रूहानी दे, ताकि हम जंगें जीत सके। क्योंकि जिस्म की बरकतें तो अनबिलीवर्स भी मांगते हैं और पाते हैं, हमें चाहिए कि हम रूह की बरकतें मांगे, तो हम फतेहमंद हो, यस्सु में फतेहमंद हो। हालेलुया। लेट्स प्रे। जी, यीशु मसीह के नाम में या खुदान आपके हजूर आते हैं, या खुदान आपको सजदा करते हैं, या खुदान आपका शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए, या खुदान जो आपने बख्शा है, खुदान हर एक चीज जो नेमते बरकत बख्शी, नई सांसें बख्शी, या खुदान जिंदगी बख्शी, या खुदान आपका शुक्र करते हैं खुदान। और अब आप आज की मीटिंग के लिए भी आप खुदान तेरा शुक्र करते हैं खुदान के तो सब कुछ मुहैया करता है खुदान, और तो अपने लोगों के लिए कलाम बख्शता है खुदान। तो या खुदान बताता है खुदान, गाइड करता है हमें कि आगे किस तरह हमने दुआ करनी है खुदान। तेरा शुक्र करते हैं खुदान कि तू है खुदान हर एक चीज में हमारे साथ है, हमारा मददगार है खुदान। इसी तरह है खुदान, हमारा जब ये मार्च का मंथ शुरू हुआ है खुदान, तो इसमें तू है खुदान हमें तौफीक दे के हम है खुदान इन जंगों को जीत सकें, यस, जो है खुदान हम रूहानी जंगें सीखना यस, चाहते हैं खुदान। अब आप हमें लड़ना सिखा, ताकि हम है खुदान उन स्पिरिचुअल वार्स को जीत सके है यस, खुदान। और है खुदान हमें रोजा रखने की तौफीक दे, ताकि यस। हम रोजा और दुआ से है खुदान ये जंगों को जीत सकते हैं खुदान। तो हमारे साथ होना, हमारी मदद और हिफाजत करना, बुरे लोगों से हमें बचा के रखना, और हर बुरी नजर से तू हमें बचाया खुदान। और इस नया मंथ है खुदान तेरे नाम से शुरू हो, और तेरे नाम से ही है खुदान हर एक काम है खुदान, हर एक दिन शुरू हो, और उसमें तेरी मर्जी शामिल हो है खुदान। और जो कुछ है खुदान मांगना भूल जाओ है खुदान, वो भी तू हमें सिखाना है खुदान, और हमें बख्शना, ताकि है खुदान क्योंकि तू हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं खुदान। और ये सब कुछ मांगते थे प्यारे बेटे अपने खुदान यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन, आमीन। बिफोर द लॉर्ड्स प्रेयर, एक चीज सिर्फ मैं लोगों को भी बताना चाहती हूँ, जो ऑनलाइन देख रहा है, जो आगे आने वाले दिनों में देखेगा। अम, ये दुआ में एक बात बोली गई, और मैं इस पे आगे जो एक जोशुआ जनरेशन जिसके नाम से समर कैंप शुरू हो रहा है, हर साल 2 जगह पे होगा। इस साल पाकिस्तान और लंदन में हो रहा है, कश्मीर और लंदन में। कश्मीर में मई में है और लंदन में अगस्त में। अम, जंगे मैं जीतना सिखाऊंगी, जैसे कि मुझे जंग जीतना सिखाया गया है, और मैंने खुदावन के वसीले फजल से जंगें जीती हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप भी जंगें जीतें। तो उसमें एक चीज याद रखें कि खुदा हमें बुरी नजर से नहीं बचाता। जब हम दुआ करते हैं कि खुदा हमें बुरी नजर से बचाए, बुरे लोगों से बचाए, तो खुदा नहीं बचाता, इसलिए क्योंकि उसने हमें वो ताकत दी है कि हम अपनी जंगें खुद जीतें। अगर वो हमें बेबी की तरह लेके कैरी करता रहेगा, तो हम कभी बड़े नहीं होंगे, हम बेबी की तरह ही गोद में रहेंगे। तो वो चाहता है कि हम जंगजू सिपाही बचे बने। और जंगजू सिपाही क्या होता है? क्या डिसाइपल्स जो के थे, यीशु के जो डिसाइपल्स थे, वो बुरे लोगों से, बुरी नजर से बचते फिरते थे, छुपते फिरते थे? नहीं, वो सामने खड़े होते थे और वो कहते थे कि उठ और चल फिर। वो कमांड करते थे, वो किसी भी
शख्स से भागते नहीं, दौड़ते नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि उनके अंदर क्या है। कलाम कहता है जो तुम में है वो बड़ा है जो कि इस दुनिया में है। और हम में कौन है? अगर हम में पाकरू है तो हमें तो छुपने की जरूरत नहीं है, हमें दिलेरी के साथ आगे आने की जरूरत है। क्योंकि जब हम दिलेरी के साथ डांटते हैं बुरी नजर को, बुरे लोगों को, बुरी रूहों को, तो वो भाग जाते हैं। वो वो खुदा उनको डांटता नहीं, क्योंकि खुदा ने तो हमें चाहा कि हम बड़े हों ताकि हम जंगें जीत सकें। क्या वो रोक नहीं सकता था शैतान को या हवा को बाग़ अदन में? क्या वो उसको बुरी नजर से, शैतान की नजर से बचा नहीं सकता था? नहीं, वो बचा सकता था, लेकिन उसने चाहा कि वो खुद सीखें कि हमें कैसे खड़े होना है शैतान के अगेंस्ट और जंग कैसे जीतनी है। क्योंकि शैतान को अभी बंद नहीं किया गया, शैतान अभी खुला है। लेकिन इतना बता दूं, माइकल रेडी है उसको बांधने के लिए, क्योंकि माइकल ने उसको बांधना है। कलाम कहता है आप और मैं उसको बांध नहीं सकते, लेकिन आप और मैं उसको भगा सकते हैं यीशु के नाम से। तो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्रे। डोंट बी स्कैर्ड ऑफ एनी इविल स्पिरिट। गो डोंट बी स्कैर्ड ऑफ एनी इविल आई। क्योंकि जब हम डरते हैं तो शैतान हम पे और ज्यादा हमलावर हो सकता है, लेकिन जब हम दिलेरी के साथ खड़े होते हैं तो फिर वो भाग जाता है। जैसे यीशु दिलेरी के साथ रूह की सच्चाई में खड़ा था, तो उसका मुकाबला वो नहीं कर सका, वो भाग गया, वो भाग गया वहां से। तो आज भी हमसे भाग सकता है, वो मुझसे भागता है, वो आपसे भी भाग सकता है। क्योंकि जब हम दिलेरी के साथ खड़े होते हैं तो वो दिलेर नहीं है, वो बुजदिल है, क्योंकि उसमें पाखरू नहीं है। और हमें दिलेरी की रूह दी गई है और वो है पाखरू। तो खुदावंद आपको और बढ़ाए अंडरस्टैंडिंग में, ताकि आप रूह में जब और बढ़े तो आप दिलेरी के साथ उसको हुक्म दें। कोई भी बुली आंख जब आपके सामने आके आपको देखे तो आप उसको डांटें और वो भाग जाएगी, वो नेस्तो नाबूद हो जाएगी यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। क्योंकि उसका नाम आला नाम, उसका नाम ताकत वाला नाम। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो शुएब, इसको क्लोज करते हैं आज की इबादत को, और दुआ रुबानी में हमारी रहनुमाई करें आप। है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह था, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जों को माफ करते हैं। तू हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। बेशक सारा जलाल तेरा है, सारा जलाल तेरा है। लेकिन ये वो वक्त है जबकि खुदावंद ने कहा कि मैं रूह बरसाऊंगा, मैं बारिश, रूह की बारिश करूंगा। और वो कर रहा है, वो कसरत से कर रहा है। और हर साल आप देखेंगे कि ये बारिश बढ़ेगी और मौजात बढ़ेंगे, क्योंकि मौजात जो है खुदा की कुदरत दिखाते हैं। क्योंकि हम इंसान होने के नाते कुछ नहीं कर सकते। हम डॉक्टर्स के पास भागते हैं, मैं खुद डॉक्टर हूँ, और कई दफा जो है वो डेफिनेटली मरीज मेरे पास अभी भी आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ। लेकिन अब मैं कहती हूँ पहले दुआ करते हैं, क्योंकि वो शाफी है, वो यहोवा राफा है। हम तो दवाइयां पैसे से देके खरीदते हैं, मेडिसिन पे पैसा खर्च करते हैं, हम अपने पैसे लौटाते रहते हैं। वो तो फ्री में देता है, उससे क्यों ना मांगे, वो देने के लिए तैयार है। तो वो शिफा देने के लिए तैयार है, वो हमें जंगजू सिपाही बनाने के लिए तैयार है, और वो अपनी कुदरत दिखाने के लिए तैयार है, ताकि बहुत से जो उसको नहीं जानते वो कुदरत देख के गले में शामिल हो जाएं। क्योंकि कौन है जो मौजज़ात कर सकता है? कौन है जो लंगड़ों को चला सकता है? कौन है जो नाबीना को आंखें दे सकता है? कोई इंसान नहीं कर सकता, लेकिन वो रूह कर सकता है। वो है पाक रूह, जिसकी कुदरत से यीशु ने कितने मिरेकल्स किए जिस्म में रह के, और हम भी जिस्म में रह के पाक रूह की कुदरत से वो मौजज़ात कर सकते हैं, लेकिन एक सर्वेंट रह के, ताकि हमारा नाम कहीं से मिटाना दिया जाए किताब हयात से। तो खुदावंद आपको अपने ईमान में रखे, एंड
टिल नेक्स्ट टाइम हम कल मिलेंगे, कल लाहौर टीम के साथ मिलेंगे, परस्तिश करेंगे। और जहां जहां परस्तिश होगी, कहीं भी पाकिस्तान में, कहीं भी दुनिया में, खुदावन उस परस्तिश को सुनेगा जो रूह और सच्चाई से और दिल की गहराइयों से होगी। तो आप रूह और सच्चाई से परस्तिश करें और किसी भी शैतान से ना डरे, किसी इवल स्पिरिट से ना डरे, क्योंकि हम किसकी तारीफ करते हैं। आज एक खूबसूरत गीत गाया लश्करों के रब, लश्कर के बारे में। लश्कर जो है, किसका लश्कर हमारे लिए तैयार है? हमारे लिए फरिश्तेगान के लश्कर तैयार है हमारी मदद के लिए। तो जो लश्कर जो है यहाँ पे घूमते फिरते हैं, ईविल लश्कर, हमें उससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हमारे पास बेटा है, हमारे पास लहू है, तो हम उसके लहू में प्रोटेक्टेड है। और हमारी जंग जीतने के लिए जब हम पुकारें तो वो लश्कर भेज सकता है, वो लश्कर जिसको यीशु बुला सकता था लेकिन नहीं बुलाया, ताकि खुदावंद के कलाम पूरा हो कि उसके जान देने से हम नजात पाए। लेकिन वही लश्कर आज हम आपके लिए और मेरे लिए मौजूद है कि हम बुलाएं और लश्कर के लश्कर फौज आ जाए, एंजल्स की हमारे यहाँ खड़े हो जाए। कलाम 91 पढ़िएगा, आज आपसे रिक्वेस्ट है 91 पढ़िएगा। वो कहता है कि तुम्हारे दाएं 1000 और दूसरी तरफ 10,000 गिर जाएंगे और तुम्हें जरर ना होगी। क्या कलाम झूठा है? कलाम सच्चा है, कलाम सच्चा है। और अगर आप गिर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, आप कलाम सही तरह से नहीं फॉलो कर रहे और कलाम को समझ नहीं रहे। तो मान लें, जान लें कि खुदावंद हमारा खुदा हमें थामे हुए है, वो हमारे थ्रू काम करना चाहता है और शैतान, मूजी शैतान को मार भगाएंगे हम सब मिलके। हालेलुया। शालोम, शालोम, शालोम। Be blessed. Stay blessed. I spread blessings of peace beyond understanding, beyond understanding, जो कि हमें यस्सु से मिलता है। ऐसा पीस जो कि कोई और नहीं दे सकता। कोई हमारे माँ बाप, हमारे हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, कोई भी ऐसा पीस नहीं दे सकता जैसे कि हमारा यस्सु देता है। वो दिल का इत्मीनान देता है कि ताकि हम किसी भी मुश्किल में हो तो हम अपने सेंसेस खो ना दें, हम अपनी अपनी बागडोर किसी और के हाथ में ना दे दे, बल्कि हमारी बागडोर सिर्फ यस्सु के हाथ में रहे, ताकि हम इत्मीनान से उस तूफान में से गुजर जाएं और फिर हम उसको फतेहमंद कहें और हम कहें यस्सु नाम आला नाम, यस्सु नाम प्यारा नाम। तो आपकी फैमिलीज के लिए आज एक ब्लेसिंग है जो क्लोज करते हुए मैं देना चाहती हूँ आपको। और वो कलाम में इसको एरियोनिक ब्लेसिंग कहा गया है। ये बहुत ताकत रखती है, कलाम पूरा ही ताकत रखता है। लेकिन जब कोई खास वक्त पे ये किसी के लिए बोले जाए, तो आज मुझे पाकरू ने खास कहा था कि आज जो भी अटेंड करेगा तो ये जो है ब्लेसिंग जो है उसके लिए जरूर उसको ब्लेसिंग्स ये जरूर चेस करेंगी। तो ये नंबर्स गिनती की किताब, उसका 6वां बाब, उसकी 24 से 26वीं आयत तक। द लॉर्ड ब्लेस दी, द लॉर्ड make his face shine upon, the Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance unto thee and give thee peace. ये एक ब्लेसिंग है जो आज मैं आपकी और आपकी फैमिली और आपके आने वाली फैमिली जो ऑलरेडी हैं बच्चे और जो होंगे बच्चे, उनके लिए मैं आज प्रोनाउंस करती हूं कि खुदावन का भारी फजल आप पे रहे, आपकी फैमिली पे रहे, और खुदावन के आने तक आप और आपकी फैमिलीज महफूज रहे। आमीन, 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 आमीन। आमीन। तो कल मिलेंगे लाहौर टीम के साथ। गॉड ब्लेस यू। अगर आप पॉसिबल हैं, जॉइन अस, अदरवाइज वेरेवर यू आर डूइंग द वर्क ऑफ द लॉर्ड। बी ब्लेस्ड, से ब्लेस्ड। बाय बाय।